Good morning, students. I welcome all my dear students in the English online lecture of Standard First. Myself, Miss Pooja, and we are going to study the subject English. So, students, let us begin with our subject English. Standard First, subject English. Okay, students. So, I request all the students to open your English Bal Bharati textbook and carry a pencil with you for referring today's online lecture. So, students, are you all ready with your English Bal Bharati textbook of Standard First? So, as you all know, we are learning our Unit 6 and today we are going to learn a new lesson. Okay, students? So, keep your textbook ready as well as keep a pencil with you as we are going to write in a textbook in our today's lecture. And the today's lecture is very interesting. So, open your page number 59 of your textbook. 5959. So you can see here page number 59, lesson number 4, everyday things. So students, have you all opened page number 59, 5959? बच्चों, पेज नंबर 59, लेसन नंबर 4, एवरीडे थिंग्स. आपको इस पेज पर आज हम इस लेसन को पढ़ने वाले हैं और आप देख सकते हो इस लेसन में आपको स्पेस दिया है यानी डैश दिया है. हम इसमें लिखने भी वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, बी रेडी. Now this lesson name is everyday things. So we are going to see what are the everyday things and we will study many things that we see every day. There are many categories and each category we are going to see. Okay, students? So I am going to show you with many examples and make the lesson more easy and clear for you all. बच्चों, एवरीडे थिंग्स यानी रोज की चीज़ें, रोज की वस्तु जो हम यूज़ करते हैं डेली, तो इसमें आप देख सकते हो थिंग्स यू ईट, थिंग्स यू ड्रिंक, अलग अलग कैटेगरी दी गई है. इसमें एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है और एक एग्जाम्पल का फ़ोटो दिया गया है. तो आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर में मैं ऐसे आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको इस लेसन को समझने में बहुत ही इजीली आप समझ सको, बहुत ही आसानी से समझ सको और ख़ुद के एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू बिगिन दिस लेसन. तो बच्चों, आपको इस लेसन को ध्यान से पहले तो समझना है, सुनना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है. स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू fold your hands and then you are going to pay attention in your video from the beginning till the last. Okay, everyday things. So students, unit 6, lesson number 4, everyday things. तो बच्चों, everyday things यानी आप जो चीज़ें आपके रोज़ के डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आप डिनर करते हो, मील्स, तो आप डिनर में कौन कौन सी चीज़ें खाते हो जो डेली आप यूज़ करते हो. फिर कपड़े, आप डेली कौन कौन से कपड़े पहनते हो. फिर कौन कौन सी आवाज़ें सुनते हो, विच थिंग्स विच साउंड यू ईयर डेली. ऐसे कई अलग अलग चीज़ें हम आज के लेसन में पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, इन एवरीडे थिंग्स, व्हाट इज मीन बाय एवरीडे? एवरीडे मीन्स द थिंग्स दैट वी यूज़ रेगुलर. ओके,
the things which are used by us every day. So in this lesson, they have shown the example in our textbook and we have to give some more examples. Okay, बच्चों आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59 में हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है फ़ोटो के साथ और उससे हमें अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हमें खुद को लिखने हैं. तो आज हम इस लेसन में देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद आप खुद एग्जाम्पल लिख सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट कैटेगरी इज things you eat in your meal every day. Okay, now you can see the pictures. Things you eat in your meal. बच्चों आप आपके डेली के खाने में मील यानी खाना, ओके, लंच और डिनर उसे कहते हैं मील. जो आप दिन का खाना खाते हो रात का उसे कहते हैं MEAL मील. थिंग्स यू ईट इन योर मील. तो आप डेली कौन कौन सी चीज़ें खाते हो आपके खाने में, मील में. सो हियर यू कैन सी राइस, RICE, राइस. द फर्स्ट फोटो इज ऑफ राइस. सेकेंड इज दाल, DAL, दाल. द थर्ड इज भाजी, BHAJI, भाजी. देन रोटी, ROTI, रोटी. एंड द लास्ट वन इज सैलड, SALAD, salad. Okay, so these things we use daily, we eat daily in our lunch as well as in our dinner. Okay students, yes or no? Yes, this is the common meal that we use every day in our lunch as well as dinner. तो बच्चों अब आपके जो रोज़ के खाने में आप ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक के घर में, आप मुझे लगता है हर एक के घर में सभी बच्चों ने टेस्ट की होगी और सभी जानते होंगे. ओके, तो राइस, दाल, भाजी, रोटी एंड सैलेड. तो ये सारी चीज़ें हम रोज़ के मील यानी लंच और डिनर में इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो there are many example you can write. In the textbook it is given roti. Okay, in the textbook it is given roti, rice and chapatis. So we can write there dal, bhaji, salad, etc. Now the next example, things you do drink every day. Things you drink every day. अब things ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ पीते हो, ड्रिंक यानी पीना. ओके, लिक्विड वाली चीज़ें. अब फर्स्ट हमने मील्स देखा था, अब ये है ड्रिंक. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट कैटेगरी वॉज मील, दैट इज़ फूड. नाउ दिस इज ड्रिंक, मीन्स विच ऑल थिंग्स यू ड्रिंक एवरी डे. कौन कौन सी चीज़ें आप रोज़ पीते हो. फर्स्ट इज़ वाटर, WATER, वाटर, पानी. तो बच्चों ये ऐसी चीज़ है कि हम डेली इसका इस्तेमाल करते हैं, वो है पानी, वाटर. सभी जानते हैं कॉमन चीज़ है वाटर, इसके बिना हम नहीं रह सकते, तो वाटर सभी पीते हैं. सेकेंड इज मिल्क, MILK, मिल्क. सो स्टूडेंट्स, आप जैसे जानते हो कि बहुत से बच्चे मिल्क पीते हैं और उन्हें पीना चाहिए, तो मिल्क का भी हम इस्तेमाल डेली करते हैं. मिल्क यानी दूध. आप सेकेंड पिक्चर में देख सकते हो मिल्क. द थर्ड इज टी, TEA. थर्ड पिक्चर है टी यानी चाय. तो आपके पेरेंट्स या आपके लिए चाय अच्छी नहीं होती है. आप जितना मिल्क पियोगे, दूध पियोगे उतना अच्छा है. तो पेरेंट्स आपके टी पीते होंगे, येस और नो? Yes, your parents might drink tea. So you must always drink milk. Okay, students? So the third one is TEA. And then juice, JUICE, juice. Juice is also common. We drink most of the times when somebody comes at our home. Your parents prepare juice
in any function and occasion, juice you drink. In any birthday parties you drink juice, so juice is also common. So this all things we drink every day: water, milk, टी, जूस. तो बच्चों जूस भी आप ज़्यादा करके पीते हो, जैसे कि कोई फंक्शन हुआ, कोई ओकेशन हुआ, घर में कोई गेस्ट आए, तो तभी आप जूस का इस्तेमाल करते हो. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़ पीते हैं: वाटर, मिल्क, टी, जूस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट. Things we wear every day. Wear, WEAR, wear यानी पहनना. ऐसी चीज़ें जो हम डेली पहनते हैं, यानी क्लोथ्स. आपको कपड़ों के बारे में बताना है. अब हम डेली कौन कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज सॉक्स. SOCKS, सॉक्स सभी बच्चे जानते हैं. स्कूल में सभी सॉक्स पहनते हैं. यूनिफॉर्म में जब शूज़ आपको पहनना रहता है तो सॉक्स कंपलसरी है और सभी बच्चे जानते हैं सॉक्स. एवरीवन नोज सॉक्स. इन द स्कूल यूनिफॉर्म ऑल्सो यू वेयर, एंड व्हेन यू गो टू अ पार्टी यू वेयर सॉक्स. नाउ द सेकेंड वन इज फ्रॉक. FROCK, फ्रॉक. नाउ द गर्ल्स wear frock. Okay, every day they wear frock because you are small now, so you wear frock, tops, jeans. Yes or no? So girls wear frock. Now the third one is t-shirt, jeans. Now this is common for boys as well as girls. Both wear t-shirts and jeans. And tie. Now tie, when you use tie, your father use tie in office or any function or in any wedding, or when in your school uniform also. Most of the time in our school uniform it is not there tie, but tie most of the schools are having this tie. So this things we wear every day, most of it is common, like socks, frock, 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 t-shirt, jeans एंड टाई. बच्चों ये जो 4 चीज़ें हैं जो पहनते हैं हम, ये कॉमन है. सॉक्स सभी जानते हैं और इस्तेमाल भी कर चुके हैं स्कूल के यूनिफॉर्म में. जब आप शूज़ पहनने के पहले आप सॉक्स पहनते हो, राइट बच्चों. सेकेंड है फ्रॉक. तो बहुत सारे गर्ल्स लोग फ्रॉक पहनते हैं, टी शर्ट, जीन्स पहनते हैं, और बॉयज़ नॉर्मली टी शर्ट, शर्ट, जीन्स. और टाई आपने बहुत बार देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने इस्तेमाल किया होगा, और आपने पिक्चर में भी देखा होगा TIE, टाई. ओके स्टूडेंट्स, सो थिंग्स वी वेयर. नाउ थिंग्स यू यूज़ एवरी डे. ऐसी चीज़ें जो आप डेली इस्तेमाल करते हो आपके घरों में. थिंग्स यू यूज़ एवरी डे. यूज़ यानी हमें इसकी ज़रूरत डेली पड़ती है, रोज़ इसका यूज़ हम रोज़ के डेली लाइफ में इस चीज़ों का हमें इस्तेमाल होता है. ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज़ लॉक. LOCK, लॉक यानी ताला. सभी जानते हैं लॉक डोर पे लगती है, दरवाजे पे. द सेकेंड पिक्चर इज़ की. KEY, की यानी चाबी. लॉक एंड की. ओके, लॉक एंड की. तो बच्चों इसका इस्तेमाल डेली होता है. वी यूज़ लॉक एंड की एवरी डे. एज व्हेन वी गो आउट वी लॉक द डोर, एंड व्हेन वी कम वी ओपन द डोर विद द की. सो लॉक एंड की आर यूज्ड एवरी डे. तो बच्चों लॉक और की का इस्तेमाल रोज़ होता है. जब हम बाहर जाते हैं तो लॉक लगा कर जाते हैं, और बाहर से जब हम आते हैं तो की के मदद से लॉक को खोलते हैं और घर में आते हैं. सो लॉक एंड की का इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में रोज़ होता है. देन थर्ड वन इज़ स्पून्स.
SPOONS, स्पून्स यानी चम्मच। तो सभी जानते हैं कि स्पून्स की मदद से हम कितने बार कोई चीज़ हमें खानी होती है तो हम स्पून से ही खाते हैं यानी चम्मच से। ओके स्टूडेंट्स, देन द फोर्थ वन इज ग्लास, GLASS, ग्लास। वी ड्रिंक वाटर इन ग्लास, सो ग्लास इज ऑल्सो यूज्ड एवरी डे। ग्लास, अब हम पानी किस में पीते हैं? ग्लास में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें रोज़ इस्तेमाल होती है। प्लेट्स, PLATES, प्लेट्स। तो बच्चों प्लेट्स की भी इस्तेमाल रोज़ होती है। आप किस में खाना खाते हो? आपके डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट आप प्लेट्स में खाते हो। येस और नो? यस। सो दिस थिंग्स, लॉक एंड की, स्पून्स, ग्लास, प्लेट्स, दिस थिंग्स आर यूज्ड एवरी डे। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो है आप पिक्चर में देख रहे हो, ये सारी चीज़ें रोज़ इस्तेमाल होती है। लॉक, की, स्पून, ग्लास, प्लेट्स। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट वन, थिंग्स यू कैन मेक, ऐसी चीज़ें जो आप घर पर बना सकते हो यानी क्राफ्ट की चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सीनियर KG क्लास तक आपने क्राफ्ट आपको नहीं पता होगा, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपने देखा होगा आपके ब्रदर सिस्टर्स को कि क्राफ्ट पेपर फोल्ड करके क्राफ्ट बनाया जाता है और बहुत बच्चों ने इससे बनाया भी होगा। तो फर्स्ट है गारलैंड, GARLAND, गारलैंड। थिंग्स यू कैन मेक, नाउ थिंग्स यू कैन मेक मीन्स you make it at your home by using paper, fevicol, scissor. This is a craft things that you prepare at your home. First one is garland. गारलैंड यानी बच्चों आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर है गारलैंड। गारलैंड किसे कहते हैं? फ्लावर्स को कट करके नेकलेस की तरह आप देख सकते हो, एक के बाद एक अलग अलग फ्लावर्स डाल के नेकलेस बनाया गया है। ओके तो ये बना हुआ है पेपर से। सेकेंड है पेपर बोट, द सेकेंड वन इज पेपर बोट। पेपर से, क्राफ्ट पेपर से बोट बनाया है। बहुत से बच्चों को बोट बनानी आती होगी और जिसे नहीं आती है वो अभी स्टैंडर्ड सेकेंड में या फर्स्ट में सीखेंगे। ओके, PAPER, पेपर, BOAT, बोट। देन द थर्ड पिक्चर इज आइसक्रीम स्टिक, बैग एंड फैन। तो ऐसी कई अलग अलग चीज़ें हैं जो हम पेपर से बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइसक्रीम स्टिक्स, तो आप देख सकते हो आइसक्रीम जो खाते हो उसके स्टिक से ये सारी चीज़ें बनी है। आइसक्रीम स्टिक, बैग एंड फैन। ये फैन भी बना है जो आप पिक्चर में देख सकते हो और ये वाटरमेलन का बैग है। एंड द लास्ट वन इज लैंटर्न। लैंटर्न आपके अगर बड़े ब्रदर सिस्टर्स होंगे तो आपने देखा होगा कंदील, जो दिवाली में लैंटर्न बहुत से बच्चे घर पे बनाते हैं। तो ये सारी क्राफ्ट की चीज़ें हैं जो आप बनाते हो पेपर से। थिंग्स यू कैन मेक, दिस थिंग्स आर दैट क्राफ्ट थिंग्स दैट you can prepare at your home. So here are the few examples and there are many things that you can make at your home, that is craft things. Now the next one is things you can hear every day. तो बच्चों अब ये things, अब चीज़ें जो आप रोज़ सुनते हो, आपको रोज़ सुनाई देती है, ये डेली की चीज़ें हैं जो आप रोज़ सुनते हो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? द थिंग्स यू कैन हियर, HEAR, हियर यानी सुनना। हम अपने घरों में रोज़ ये सारी आवाज़ें सुनते हैं। फर्स्ट वन इज डोर बेल, डोर बेल, DOOR, डोर, BELL, बेल, डोर बेल। तो बच्चों डोर बेल यानी आपके घरों में, सभी के घरों में डोर बेल होगी। यस और नो? यानी
घंटी, डोरबेल, जब आप कोई नॉक करता है, कोई डोरबेल बजाता है तो इसकी आवाज़ हम डेली सुनते हैं। दरवाजे के बाहर लगा हुआ होता है और जब कोई आता है बाहर से तो वो डोरबेल बजाता है, तो डोरबेल की आवाज़ हम डेली सुनते हैं। सेकेंड वन इज़ मोबाइल रिंगटोन। अब आपके पेरेंट्स का मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन लेक्चर में, और आपके घरों में जो मोबाइल है, किसी का फ़ोन आता है तो आपका मोबाइल की रिंगटोन बजती है, तो इसे भी हम रोज़ सुनते हैं। एवरी डे वी हियर द रिंगटोन ऑफ द मोबाइल। व्हेन आवर पेरेंट्स phone comes, then the ringtone of the mobile is heard by us every day। तो बच्चों, मोबाइल रिंगटोन आप रोज़ सुनते हो। जब भी फ़ोन आती है तो आपको इसकी आवाज़ मोबाइल रिंगटोन की आती है। थर्ड वन इज़ एनिमल्स एंड बर्ड्स साउंड सॉन्ग। एनिमल्स एंड बर्ड्स सॉन्ग और साउंड। तो बच्चों, एनिमल्स, आपके सराउंडिंग में आवाज़ें बहुत सी आती है जो हमें रोज़ सुनाई देती है। आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो आप बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हो। येस और नो? येस। क्रो की आवाज़ रहती है, कभी कभी काव काव, या डॉग्स आर बार्किंग। आपके नज़दीक में कोई नीचे डॉग भूख रहा है तो ये सारी, कैट म्याऊ कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डेली सुनते हैं। Okay students, these are the things that we hear every day, that is animals and birds sound of the birds in the morning, birds chirping, and also dog barking, cat is meowing. These are the sounds that we hear every day. Okay, now the next one is थिंग्स यू कैन स्मेल एवरी डे। अब ऐसी चीज़ें जो आप डेली सूंघते हो, आप स्मेल कर सकते हो। स्मेल यानी सूंघना। ओके स्टूडेंट्स, थिंग्स यू कैन स्मेल एवरी डे, ये सारी चीज़ें जो एवरी डे हमें सुगंध आती है और बहुत ही अच्छी लगती है स्मेल, और हम डेली इसे सूंघते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फ्लावर। FLOWER, फ्लावर। द फर्स्ट वन इज़ फ्लावर। फ्लावर यानी फूल। तो बच्चों, जब आप अच्छा फूल देखते हो तो आपको उसकी स्मेल बहुत पसंद आती है। येस और नो? एंड एवरी स्टूडेंट, व्हाट दे डू, दे स्मेल इट फर्स्ट। सो फ्लावर, द स्मेल ऑफ अ फ्लावर। सेकेंड, अरोमा ऑफ फूड। जब आपकी मम्मी कुछ अच्छा बनाती है तो आपको समझ में आता है कि मम्मी ने आज ये वाला फूड यानी ये खाना बनाया है, और उसकी सुगंध बहुत ही अच्छी आती है। येस और नो? कितने बार आप, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू स्मेल एंड यू टेल योर मम्मा दैट आपने आज क्या बनाया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। येस और नो स्टूडेंट्स? येस। नाउ द थर्ड वन इज परफ्यूम। परफ्यूम यानी सेंट। ओके, तो सभी को परफ्यूम और सेंट की सुगंध अच्छी लगती है, और बहुत ही अच्छी स्मेल परफ्यूम और सेंट की आती है। यू नो परफ्यूम एंड सेंट? येस, व्हेन यू गो टू एनी वेडिंग और आउटसाइड व्हेन यू गो, you use the perfume, so the smell of the perfume and scent is very very good. And the last is incense sticks. incense sticks यानी अगरबत्ती। incense sticks इंग्लिश में बोलते हैं और अगरबत्ती हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो जब हम प्रे करते हैं गॉड से तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंसेंस स्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो थिंग्स यू कैन स्मेल एवरी डे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़ महसूस करते हैं, सूंघते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज़ देयर? सोप। सोप इज़ ऑल्सो देयर। साबुन की स्मेल, यस और नो? शैम्पू, साबुन, इसकी भी स्मेल हम एवरी डे यूज़ करते हैं, मीन्स स्मेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। नाउ देयर आर मेनी थिंग्स। Soap is also there, shampoo is also there, the things you can smell every day.
Okay, students. So these are the things that you can smell every day. Now, the next things you care for. आप इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से क्या करते हो, केयर करते हो, यानी बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हो. ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनकी केयर करते हो यानी देखभाल करते हो. सबसे फर्स्ट है पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स यानी पालतू जानवर. जो पेट एनिमल्स, डॉग, कैट, बहुत जन के घर पे होगा भी पेट एनिमल्स. डॉग होगा किसी के घर पे, किसी के घर पे कैट होगी, या फिर किसी ने बर्ड्स रखे होंगे, पैरेट या लव बर्ड्स. किसी के घर पे फिश टैंक में फिशेस होंगे, रैबिट होंगे. तो ये सारे पेट एनिमल्स हैं जो हम इनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं. देन सेकेंड वन इज बुक्स. बुक्स, आप बुक्स को बहुत ही केयर करते हो. यस और नो स्टूडेंट्स? यस. तो बुक्स की आप बहुत अच्छे से देखभाल करते हो. बुक्स फटनी नहीं चाहिए, प्रॉपर जगह पर बुक्स होनी चाहिए, बैग में होनी चाहिए. जब आपके लेक्चर्स होते हैं तभी आप उससे निकालो, उसके बाद बैग में रखो. देन द फोर्थ वन इज़ टॉयस. आप अपने खिलौने की भी उसी तरीके से बहुत अच्छे से देखभाल करते हो. जो टॉयस है वो आप किसी से शेयर नहीं करते, टूटने नहीं देते. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू केयर फॉर. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम केयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर we have learnt many examples. I have shown you 3 to 4 examples in every category. तो बच्चों, हर एक कैटेगरी में मैंने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल्स बताए हैं. अब हमारे टेक्स्ट बुक में हम इसका आंसर बहुत ही इजीली लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो कैरी अ पेंसिल इन योर हैंड फॉर राइटिंग द आंसर. अब आपको आपके हैंड में पेंसिल एक रखनी है. मैं आंसर बताने वाली हूँ, आप उससे टेक्स्ट बुक में लिखोगे. थिंग्स यू ईट. राइस. तो राइस दिया गया है, RICE राइस. और आपको फोटो दिया गया है चपातीस का. तो आपको चपाती, आपको फोटो जो दिया गया है उसकी स्पेलिंग लिखनी है. CHAPATTIS, चपातीस. तो आप आपके खाने में, मील में क्या इस्तेमाल करते हो? राइस एंड चपाती. मैंने आपको अभी फ़ोटो में बताया है, वीडियो में. थिंग्स यू ड्रिंक. सेकेंड वन, थिंग्स जो है आप रोज़ पीते हो. मिल्क, MILK, मिल्क दिया गया है. और फोटो किसका है बच्चों? जूस का. तो आपको स्पेलिंग लिखनी है जूस, JUICE, जूस. You can see the photo of juice, so you have to write the spelling of juice. Third one, things you wear. Wear, it means the first one is tie, TIE, tie is given. Socks. Socks also you wear every day when your school is there, so write the spelling SOCKS, socks. Now the fourth one, things you use. Now the things you use every day. Okay, spoon is given, SPOON, spoon. And what is the photo? Yes, the photo is of a key, KEY, key. Write the spelling. Fifth one, things you can make. A garland. And what is given there? A paper boat is given. So we are going to write the spelling of paper boat. PAPER, paper, BOAT, boat, paper boat. Then the next one is things you hear. Doorbell. Doorbell. And what is given? Mobile is given. So we hear mobile ringtone every day. Yes or no? So write the spelling of mobile ringtone. The hint is given to you all. The picture is drawn. That only spelling you have to write in your textbook. बच्चों, जो आपको फ़ोटो दिया गया है उसी का नाम आपको लिखना है. सो राइट मोबाइल रिंगटोन, MOBILE, मोबाइल, RING, रिंग, TONE, टोन, रिंगटोन. द नेक्स्ट इज थिंग्स यू कैन स्मेल. सेंट. एंड what is the picture given? Flower. It is a flower. So write the spelling of flower, FLOWER, flower.
Then last one, things you care for, your pet animal, and what is there? Books. BOOKS, books. Okay students, so have you all understood this lesson? We use these things every day. Now question number 2, list more example of each of the things given above. Then choose any one example and write 1 or 2 lines about it. Now you can do it as the activity, as a homework also. You have to write many example as I have shown you in 2-3 sentences. Now in the yellow color box some instruction is given to the teacher to do it in the class. Now in the online lecture it is not possible. I am just reading for you. Talk to the children about each item and encourage them to list and describe as many examples as possible orally. Point out they can talk, write about the color, size, shape, feel, soft, rough, hard, etc. Smell, sound, etc. of each. For example, I eat rice. It is white, soft and tasty. I eat it hot. Our doorbell goes ding dong tring when you press the button. So these are the things. When I ask you any of the things, like what is the things which is very soft, which is the thing that is white in color and very very soft, it is a cotton. So like that you can tell me the things. Okay, your parents can ask you any things and you can tell it. So here we have completed our lesson, everyday thing. So you are going to write the things in the textbook as I have done it for you in page number 59. Okay students, and you are also going to write many more examples in your notebook also. Thank you students for watching today's online lecture. Stay connected for the next online lecture. I hope that you have understood the lesson very well. Thank you.